घंटे में बिकता है। सभापति महोदय, मैं आपसे मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इस कुटीर उद्योग को संरक्षण दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 121 श्री सामिक भट्टाचार्य। Honorable Minister. Supplementary one, Shri Samik Bhattacharya. Sir, my question regarding PIB, Press Information Bureau. The PIB fact-checking is doing a great job since 2019. However, fake news by the fact-checking only in Hindi and English. Given that fake news against the central government is the highest in West Bengal, is the ministry planning to establish a dedicated fact-checking unit under PIB Kolkata to specifically address this issue in the state? Honorable Minister. Respected Chairman, sir, the Minister question is very specific. Before that, I want to take 2 minutes of this House, Mr. Chairman, sir. Chairman, sir, you are also expressed about the fake news. In a function, you mentioned in that unregulated information and fake news could create a disaster of unimaginable proportions. You mentioned that. Sir, the fake news is a very social event, sir, evil. So we have to control this fake news and misleading information, sir. As our honorable member mentioned that in West Bengal, the fake news and misleading information are more. Yes, sir, right, sir. Last week also we know that the West Bengal Chief Minister came here in Delhi to attend a Nidhi Aayog meeting. In that meeting, she mentioned that her switch was off. But in that, we had a issue that this statement is misleading. So like that in West Bengal, some one Honorable Minister, we will delete the name of the Honorable Chief Minister. Okay, sir. Our Chief Minister said so. Chief Minister Please go told. ahead. I didn't told the names. So, Chief Minister told. And that message is misleading. And the members is concerned of the fact check unit to establish in West Bengal. Sir, now we don't have a plan to establish fact check units in a regional level. The fact check unit is in Delhi. We have a very good system here, sir. In Delhi itself, we are doing the fact check units. Sir, we almost 2019, we established this fact check unit. Almost 47,562 fact checks actionable queries we took, sir. Out of that, 4,800 fact check and 9,922 messages are we busted as an fake news. So we are working in all India level, sir. Second supplementary, Shri Samik Bhattacharya. Sir, district journalists are underpaid and they lack proper training. In West Bengal, no Vartala program has taken place in our state. Will PIB Kolkata organize the press tours and expand the Vartalap scheme for district journalists for improving communication between the government and the regional media in West Bengal and as well as our other states? Honorable Minister. Sir, question is very particular. See, Vartalab is for a workshop and conference for the media people, journalists and media people. So the Vartalab, almost this year itself, sir, 72 Vartalabs are conducted and 27 press tours are conducted for the by the PIB for the journalists in West Bengal itself. Last year, 25/8/2023, Durgapur was then on Vartalab. 18/7/2023, Midnapur was then conducted on Vartalab. 16/12/2023, Balakat 3 Vartalab was conducted.
And before 2022, 4 Vartalap was conducted. It is in a continuous process. Every year, every state, the Vartalap program is continuing for the training and conferences for the journalist welfare to advancement of this knowledge. Third supplementary, Susri Dola Sen. Thank you, Chairman, sir. Though we know that the Treasury bench have an agenda of political revenge, still we are bound to obey the Supreme Court verdict, sir. So is it true, I want to know from the ministry through you, sir, is it true that the Supreme Court of India has ordered a stay on the creation of fact-check unit by the Press Information Bureau PIB this year in March 2024? If yes, please state the reasons behind it and to why the creation of fact-check unit was stayed by the Honorable Court. And Bombay High Court too, sir, and Supreme Court. This matter is sub judice, sir. The court case is pending. Honorable Minister. One second. Please don't rise. Honorable Minister is on his legs. Honorable Chairman, sir, the point is fact check related to the Government of India. All the ministries, all the departments of the Government of India. Who is the right authority to say whether a data or an information related to a particular ministry or particular department should not be given by anybody other than the ministry or department? That's the fundamental point which is under contention. The amendment in the IT intermediary rules, which has been stayed by the Supreme Court, by the Honorable Supreme Court, that is still under contest, but the fundamental principle is, our point is, anything related to the Government of India, only the Government of India can say whether it is a correct fact or wrong fact. Sir. That's our stand. Supplementary number 4, Sri Saket Gokhale. Sir, he had raised 100. Saket, ask pointedly. Yes, sir. So I have a very specific question. Yes. The Honorable Minister, in his response to the first supplementary, said that the problem of fake news is most rampant in the state of West Bengal. I would like to ask if the Honorable Minister can authenticate this with data, sir. Thank you. Any other supplementary? No, my supplementary is that. Can you authenticate this with concrete data and lay it on the table of the House, sir? This before the table of the House. The member itself tweeted misleading information. The Honorable member himself, he tweeted, RTA reveals that Modi is visit to Modi for a few hours for the one tweet. For we checked that message is very okay. Honorable, so I will submit this. Honorable Minister has agreed to authenticate. Agreed to authenticate. Fine. Supplementary number 5, Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है। जब राजनीति विभाजित होती है तो पत्रकारों का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। Is the government planning to bring in any kind of legislative initiative with regard to protection of journalists as well as their social security mechanism? Thank you, sir. Honorable member, does it relate to the question? Okay. Sir, I hope it doesn't. Sir, you rightly mentioned, sir, this is related to the question, but we are concerned about the journalist welfare. Journalist welfare schemes are also there, sir. For if any journalist they are going to met in an accident, our PIB is supported for them for the medical aid. If the journalists are unfortunately they lost them life, we are assisting. Some assistance also giving. During pandemic time also, we more than 100 journalists we supported, sir. Yes, you are right, because media is fourth pillar of democracy. And by media, I mean a media that is well informed, believes on sanctified platforms, and it is a necessary asset of democracy. Question number 122. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Honorable Minister. Of the House, sir. Supplementary number 3, Sri Sujit Kumar. Though we have a code of ethics for OTT 2021 in our country,
which mandates that OTT platforms will undertake adequate safeguards for restricting age-appropriate content. But, sir, I would like to know from the government, apart from this, are there any specific programs which will educate our younger audience and vulnerable population under 18 about the ill effects of OTT platforms? Honorable Minister. Sir, the honorable member raised a valid question, sir. Sir, I want to elaborately, if I have to give this answer, sir. Sir, our Prime Minister is believe that there is no control and no authentication, sir. So for that, our Prime Minister removed the attestation. Well, when I was a student, sir, I went to apply for the law college, sir. Last date I went, sir. So I want to attest. I want to get attestation. I went. I asked some professors, sir, I don't know how can I attest? So our Prime Minister removed this attestation, so the help of the student and the citizen. We are trusting the students, the citizens. For that, so our Prime Minister is trusting the industry. For that, we brought up self-certification, sir. In OTT, self-certification brought up for the content classification, sir. For you, unrestricted access regarding of age and is family friendly. UA plus 7 per age around 7 years and above can be viewed person under the age of 7 years with parental guidance. And the classification third, 13 plus UA, sir, 13 years and above and can be viewed by a person under the age of 13 years with parental guidance. UA 16 plus 16 years and above and can be viewed by a person under the age of 16 years with parental guidance. So the parental guidance already there in our provision, sir. The minister's question is particularly whether we are going to have any seminar. Already we are conducting seminars and conferences for the education purpose, for educate the society. Supplementary number 4, Shri Neeraj Dangi. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दी गई है कि जिसमें कहा गया था कि टीवी से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार इसे ध्यान में रख के गाइडलाइंस तैयार करने और ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करने पर विचार कर रही है? थैंक यू सर। Honorable Minister. Sir, just now I explained for the self-certification. As per the existing laws, the self-certification scheme is there. For the OTT, we already, the provision is there, sir. The, under section of Information Act 79 subclass 3B, the government is taking action. Recently also, 18 OTT, we took action against the OTT platforms to the against them. Shri Raghav Chadda, 5th supplementary. Thank you so much, sir. So as we all know that piracy is a plague that is all pervasive, not just in the cinema industry today, but also in the OTT platform world. Sir, piracy and unauthorized reproduction of copyrighted content has led to an annual loss of 20,000 crores in the film industry and the OTT industry, and there has been an increase of 62% of piracy incidents during the pandemic alone. Through you, sir, I would like to ask the Honorable Minister that the cinematography bill that was passed in this House last year, which largely deals with the anti-camera recording of films, etc. in theatres, is the Government of India today planning to either amend the cinematography bill or come out with a separate mechanism to deal with piracy in OTT platforms that is also becoming widespread? Because of this unauthorized reproduction, years and years worth of hard work and effort of artists goes down the drain. So I would really urge through you, the Minister, to come up with an institutional mechanism to deal with this piracy. Yes, he knows much about film industry.
So Of late, he has gained experience. Honorable Minister. The honorable member raised the question, and he himself. Ah, yes, you are. Oh my God. 1 second, 1 second. I will add to this, sir. No, 1 second. I know Jayaji has been legend ever since he entered on that cellular screen. So I am quite sure what she has said. It's because of her. And the question has been rationally worded. I will clarify, sir. No, don't clarify. No, I will clarify. You don't clarify when you get endorsement. I get more information about piracy. 1 second. Jayaji. Raghav, 1 second. Never clarify when you get endorsement from a legend. No, I will not allow. Honorable I Minister. welcome the endorsement, sir. No, Honorable Minister. Endorsement. Respected sir, some minister, honorable member mentioned that the cinema. Sir, we recently the Cinematography Act, Amendment Act 2023, this House and the other House, Lok Sabha, detailed we discussion, sir. We discussed and we passed this amendment to protect the film producers from the pirates, sir. So we recently brought the amendment, and the notification also, we gazette also we released in this, sir. In this, we have appointed one nodal officer in the every central film board film certification office. Also, we established a nodal officer. If they have any grievances, they can go and approach to the nodal agents. As per concern of the OTT piracy, the IT rules 2021 is dealing with this copyright and trademark and infringe the other properties, sir. So for that, the grievance 3-tier mechanism already is there in the ethics code. They have to approach the publisher or the self-regulating body. After that, the over mechanism is there, sir. The mechanism is already is there. Honorable Minister, he has done very good homework. Question number 123, Sri Sant Balbir Singh. Honorable Minister. House, sir. First supplementary, Sri Sant Balbir Singh. बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। असी पंजाब जो है बहुत एग्रीकल्चर दे विच खेती दे विच सारे बहुत वड्डा उन्हां दा योगदान है पंजाब दा। सो जिहड़े फूड प्रोसैसिंग प्लांट जिहड़े है वो बहुत जरूरी है। जिस तरह आलू दा उत्पादन होंदा, टमाटर है, गाजरां, गोभी है, पर जे तां इहदा रेट होवे तो फिर ये सब कुछ विक जाता, नहीं तो सड़कों के उत्ते गलदा तो जोड़ा जिमीदार का नुकसान होंदा वो असह होंदा। तो जदों एक बारी किते आलूआं की मार किसी जिमीदार ते पै जाती है तो मुड़ के उठण जोगा नहीं रहिंदा। सो साडी जिहड़ी हैगी है यही असीं पुछना चाहुंदे आ कि पंजाब दे विच फूड प्रोसैसिंग जिहड़ी इंडस्ट्री है उहनूं हल्लाशेरी देण वास्ते उन्हां दी सबसिडी वधाउण वास्ते कोई योजना है, जे है तां ओह की है दस्सिया जावे। Honorable Minister. Sir, through my ministry, sir, this has been one of our prime concerns कि जो वेस्टेज होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने एक चेन बनाने का प्रयास किया जिसके तहत फार्मर से लेकर जब तक कंज्यूमर तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है तब तक ना सिर्फ उसकी वेस्टेज को नियंत्रित किया जाए बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाए। केंद्र सरकार की सर विभिन्न योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो या पीएमएफएमई के तहत हो या पीएलआई स्कीम्स के तहत हो सर, इन तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की फूड प्रोसेसिंग हो और वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। इस बार के बजट में भी कई ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया सर। इरेडिएशन यूनिट्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स इस बार के बजट में उसकी घोषणा की गई है। हम लोगों ने फूड टेस्टिंग लैब्स का भी हम लोगों ने इस बार के बजट में प्रबंध किया गया है। पर सर अंतोगत्वा ये तमाम विषय जो भी हैं ये स्टेट के द्वारा डिमांड ड्रिवन ही होते हैं। तो अगर ऐसी और कोई जानकारी अगर राज्य के माध्यम से हम लोग के पास आएगी तो केंद्र उसके ऊपर विचार जरूर करेगी। थैंक यू सर। Second supplementary, Sri Sant Balbir Singh.
सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जी प्रकाशित रिपोर्ट आ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 92,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर ये सवाल वही पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है सर। जैसा मैंने कहा कि वेस्टेज को मिनिमाइज कैसे किया जा सके, कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए सरकार पहले से ही काफ़ी गंभीर है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है सर, कम ही सही बट आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वेस्टेज हम लोग कम करने में हम लोग सफल रहे हैं। इसी दिशा में जो मैंने जानकारी दी कि रेडिएशन यूनिट्स को भी इस बार सरकार ने 50 नई रेडिएशन यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव इस बार के केंद्रीय बजट में किया गया है सर। ये तमाम ऐसे ही स्टेप्स हैं, ये वही माध्यम है जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना उत्पादन जो किसान करते हैं उसका हम लोग नुकसान कम से कम हो और बल्कि उसमें वैल्यू ऐड कर कर हम लोग ग्राहकों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद सर। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। थैंक यू सर। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो मिनिस्ट्री है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे मेरा मानना है, क्योंकि हम किसान अनाज उगाते हैं, हम तैयार करते हैं माल, लेकिन वो जब तक मार्केट में जाता नहीं है तब तक जो बीच का समय है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। I just would like to ask the minister, what steps is the government taking to improve the transportation and the infrastructure to reduce the post-harvest losses? Honorable Minister. For your question, it is a serious concern and you are rightly said कि ये हम सब की चिंता में से है। कृषि प्रधान देश है मैम हमारा, और अधिकांश राज्य हमारे देश के कृषि पर ही आधारित होते हैं। मैं भी जिस राज्य से आता हूं बिहार, वहां पे भी कृषि का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में मैम प्रॉपर हम लोग चेन हम लोग क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से हम लोग फार्मर से लेके फोक तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कहीं पे किसी तरीके की ना गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का समझौता हो और वेस्टेज को भी हम लोग कम से कम हम लोग कर सकें। कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, कंप्लीट कोल्ड चेन के माध्यम से हो। पिछली बार मैम ने ही एपीसी यूनिट्स का भी सवाल पूछा था। ऐसे क्लस्टर्स भी हम लोग क्रिएट करने का हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर वहीं पर ही फूड की वैल्यू एडिशन हो सके, उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने अपने जवाब में इससे पहले भी कहा कि ये तमाम विषय डिमांड ड्रिवन भी होते हैं। तो ऐसे में जो जानकारियां या जो सुझाव राज्यों के माध्यम से अगर आता है तो उस पर भी सरकार अध्ययन करती है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इरेडिएशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, ये तमाम ऐसे कदम हैं जो सरकार ने स्वतः अपनी तरफ से उठाए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फार्मर टू फोक ये जो चेन है इसको खूबसूरती से बरकरार रखा जाए। थैंक यू। सप्लीमेंट्री नंबर 4 डॉक्टर भगवत कारड। सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग पार्क्स कितने सैंक्शन हुए थे, कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इनकम्प्लीट है, तो व्हाट गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स टू कंप्लीट द फूड प्रोसेसिंग पार्क्स? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय सांसद का जो सवाल है, फूड प्रोसेसिंग पार्क, जो मेरी जानकारी में समझ में आया मेगा फूड पार्क्स का आप जिक्र कर रहे हैं। सर, ये 41 मेगा फूड पार्क्स सर सैंक्शन हुए थे और इसमें सर अधिकांश सारे ही कार्य कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक में ज़रूर हम लोग को कठिनाई आई थी, वो भी जो उद्यमी थे उनका पर्सनल एक कारण था सर, उनकी डेथ हो गई थी जो मेन उनके वो थे, उसकी वजह से उसमें बाधा आई। बाकी 41 हैं सर और ये 41 कार्य कर रहे हैं। बट सर, इसमें क्योंकि मेगा फूड पार्क्स में जगह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस योजना को फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया है और इसकी जगह पर
APCs हम लोग लेकर आए हैं, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग लेकर आए हैं। इससे पहले सर 50 एकड़ ज़मीन की इसमें ज़रूरत होती थी, अलग अलग यूनिट्स को लगाने की इसमें ज़रूरत होती थी। कई बार राज्यों में एक साथ 50 एकड़ की ज़मीन मिलना सर कठिन होता था। साथ ही में लैंड यूज़ के लिए जो लॉज हैं सर वो भी इसमें बाधा बनते थे। तो ऐसे में सर फिलहाल के लिए इस योजना को डिसकंटिन्यू किया गया है और APCs के माध्यम से हम लोग ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री नंबर 5, डॉक्टर सिकंदर कुमार। Honorable sir, with your permission, I would like to know from the Honorable Minister what steps the government has taken to boost the food processing industries in Punjab and how many food processing industries are running currently in Punjab. Thank you. Honorable Minister. सर इन्होंने पंजाब स्पेसिफिक सवाल पूछा है जिसका जवाब सर सवाल में भी दिया जा चुका है। लिखित में भी सर हम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। सर जैसा मैंने बताया कि प्रमुखता से सर 3 योजनाएं हैं जिसके तहत हमारी सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स के को धरातल पर उतारती है। सर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMFME के माध्यम से, दूसरा PLI स्कीम्स के माध्यम से जो बड़े यूनिट्स हैं उसको हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। सर इसमें पंजाब में इन्होंने पूछा है सर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 64 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है। इसकी लागत भी अगर जानना चाहेंगे तो 1594.75 करोड़ की लागत से ये किया गया है। सर PMFME का अगर ये जिक्र करेंगे सर तो PMFME के तहत सर 2253 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को सैंक्शन किया गया है सर और इसका अमाउंट 197.97 करोड़ इसकी लागत रही है सर। और PLIS के तहत सर 6 प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को सर अप्रूवल मिला है और इसकी लागत 126.31 करोड़ रही है सर। तो ये वो यूनिट्स हैं जो फिलहाल सर पंजाब में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा सुझाव रहेगा, माननीय मंत्री जी भी हैं और कृषि मंत्री जी भी हैं, वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का खेत में हो जाए, रिलैक्सेशन रूल्स का हो जाए, क्लस्टर के माध्यम से हो जाए और सहकारिता विभाग जो मदद करता है तो उसका फायदा ये होगा कि वेस्टेज भी कम होगा और उस इलाके के आसपास उस प्रोड्यूस की खपत भी हो जाएगी। इस पर कोई नीति बनेगी तो किसान को बहुत लंबा फायदा होगा और किसान को अपने प्रोड्यूस का पूरा फायदा मिल पाएगा। तो माननीय शिवराज जी भी हैं यहाँ पर, इस ओर ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 124, श्री सुधांशु त्रिवेदी। श्री सुधांशु त्रिवेदी। Sir, I would like to ask to... Just 124. Sir, question number 124. Honorable Minister. Honorable Minister. Supplementary number 1, सुधांशु त्रिवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैविक और प्राकृतिक खेती जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरी है और आने वाले समय में उत्तरोत्तर उसका आवश्यकता बढ़ने जा रही है, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई व्यापक या व्यवस्थित योजना पर विचार कर रही है, या मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न को रखा है। 10 वर्ष पहले, उससे भी पहले किसान और सरकार के द्वारा किए गए खेत में जो रासायनिक खाद दिए जाते थे उससे खेत का भी, जमीन का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है और किसानों का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अनेक तरह की बीमारियां फैल रही है। इसलिए 15-16 में जो नई सरकार आई है उस सरकार ने जैविक खेती के बारे में सोचा और उस पर कार्रवाई कर रही है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी तक 48,30,000 किसान
59,74,000 हेक्टेयर में जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे उनको फायदे भी हो रहे हैं और बीमारी में कमी भी आ रही है। और जो जैविक खाद के लिए जमीन पर प्रयोग किया जा रहा है, उससे 4 फसल तक तो हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बाद जैविक खेती के करने के कारण जमीन भी उपजाऊ हो रहे हैं और किसान भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री सुधांशु त्रिवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जैसे एक दौर में जब कृषि के लिए नए उपकरणों और मशीन टूल्स का प्रयोग होता था, तो आने वाले समय में जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए भी क्या कुछ विशेष प्रकार के उपकरण, मशीन्स और टूल्स के बारे में उनकी जानकारी और उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है? माननीय मंत्री जी, जब जैविक खेती के लिए रासायनिक खाद को हटाया जा रहा है, उसी तरह ट्रैक्टर, बीज लगाने का मशीन, उपकरण हम विभिन्न तरह से सरकार के द्वारा उसे मुहैया करा रहे हैं और उससे अच्छी खेती, कटाई में, जोताई में, बीज बोने में उसे लग रहे हैं। हम अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती का उपयोग करें और खेत को भी उपजाऊ बनाने का, उस खेत की रक्षा भी करें और किसान के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। यही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्री संजय सिंह। धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में बताया कि 48 लाख किसान जैविक खेती देश में करते हैं, यह अनुमान है उनका। तो बड़ी संख्या किसानों की मान्यवर करोड़ों की संख्या में ऐसी है जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल अपनी खेती के लिए करते हैं। मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 50 किलो की जो बोरी किसानों को मिलती थी, क्या उसमें 5 किलो रासायनिक खाद कम कर दिया गया? अगर कर दिया गया तो क्यों किया गया? और मूल्य उतना ही देना पड़ता है किसानों को, तो ये एक प्रकार से उनके साथ पक्षपात है। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, 50 बोरी के 50 किलो के बदले 40 किया गया है और उसमें दाम भी घटाया गया है, लेकिन उस जैविक खेती के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है कि इस खाद में कोई खराबी है और किसान ने कोई शिकायत भी नहीं की है। अगर माननीय सदस्य को अगर यह मालूम है कि उसमें कोई शिकायत है खाद में, जैविक खाद में, तो उसको मुझे बताने का काम करें। इसके बारे में हम जरूर निश्चित रूप से उन्हें जवाब देने का काम करेंगे। सुनो। हाँ, यस माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जैविक और प्राकृतिक खेती का था, जिसका माननीय मंत्री जी विद्वता पूर्वक उत्तर दे रहे थे। आप सीधे उससे पहुंच गए संजय सिंह जी रासायनिक खेती पर, केमिकल और फर्टिलाइजर की खेती पर, लेकिन उन्हें सवाल पूछा है उन्हें सवाल पूछा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खाद की मात्रा जैसे वो बता रहे थे कम जरूर हुई है, लेकिन उसके अनुपात में कीमत भी कम कर दी गई है, किसान को कोई घाटा नहीं है। मंत्री जी ने बहुत प्रभावी तरीके से बात कही है। श्री सुभाष बराला, सप्लीमेंट्री नंबर 4। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहूंगा कि रासायनिक खादों के उपयोग के अति उपयोग के कारण से आम आदमी की भी सेहत खराब हुई और धरती माता की भी सेहत खराब हुई, जिसके कारण से दोबारा से हमें हमारी परंपरागत खेती के ऊपर आना पड़ रहा है। मेरा इसमें एक ये कहना है
कि हरियाणा प्रदेश खाद्यान्न भंडार भरने में अपना प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन रासायनिक खाद के अति उपयोग के कारण से हरियाणा प्रदेश की लाखों एकड़ जमीन सेमग्रस्त हुई, यानी कि वाटरलॉग्ड हुई। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वर्तमान में हमारी 9.5 लाख एकड़ जमीन सेमग्रस्त है, वाटरलॉग्ड है। हरियाणा सरकार इसको ठीक करने में अपने सारे संसाधन लगाए हुए हैं, लेकिन सीमित संसाधन होने के कारण से उसमें गति बड़ी कम है। क्या केंद्र सरकार की योजना ऐसी है कि उस सेमग्रस्त जमीन को ठीक करने में अपना वो भूमिका निभाए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य सांसद को मैं बताना चाहता हूं कि परंपरागत कृषि विकास योजना में प्रति हेक्टर 31,500 रुपये दिए जाते हैं, जबकि मिशन ऑर्गेनिक में 46,500 रुपये की राशि प्रति हेक्टर प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप पहले हरियाणा में पता लगावें कि इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, पैसे दिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर इनको ना में है, अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो यहाँ से निश्चित रूप से वहाँ निर्देश जाएगा कि इसका उपयोग करें। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्रीमती रंजीत रंजन। सर, मैं आपके माध्यम से माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं। सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछूंगी कि जैविक खेती में अगर हम खेती करते हैं तो कम खेती होती है कंपेयर टू पेस्टिसाइड वाली खेती से, तो क्या खासकर राइस में, गेहूं में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है, जैविक खेती जो किसान कर रहा है, क्या उसको बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है क्या? और दूसरा, KVK सर मैं भी बहुत जाती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र, अभी लगभग 720 के करीब है, और जिनको आप 20 हेक्टेयर जमीन देते हैं, जो किसानों को प्रोत्साहित करती है जैविक खेती के लिए। सुखाड़ है, बाढ़ है, तो कौन सी खेती करनी है, कैसी खेती करनी है। सर, आज की तारीख में आप उनको 20 एकड़ जमीन देते थे, लगभग मात्र 7,06,000 के करीब ही किसान उसमें रजिस्टर्ड है, और लगभग इसमें 20 कर्मचारी और साइंटिस्ट होते थे, जो अब घट के 16 हो गए हैं, और अभी इसमें से लगभग 2.1 करोड़ जो कृषि श्रमिक थे चले गए हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों को प्रोत्साहित और अवेयर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो क्या इसको आने वाले आगे के प्लान में इसको कम से कम डबल डिस्ट्रिक्ट में 2 KVK केंद्र करने की योजना है? और थैंक यू सो मच सर। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम उनके सलाह को मानते हैं और हम निश्चित रूप से उनके सलाह को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं सलाह तो नहीं दूंगा, एक सुझाव दूंगा। कृषि में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है, और कृषि उपकरण जितने तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ हों किसान के पास, उससे कैसी खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है, खासतौर ट्रैक्टर के मामले में, कि किसान ये भावना रखता है कि मैं उस ट्रैक्टर को तब तक चलाता रहूं जब तक वो चल रहा है, चाहे कानून में उसकी समय अवधि 10 वर्ष की हो। तो किसान को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि कृषि उपकरण में सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, और जो नया ट्रैक्टर आता है वो फ्यूल कंजम्पशन में भी ठीक है, और बाकी उपकरण भी अच्छी तरह से लग सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक भावना फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग ये धारणा लिए बैठे हैं कि हमारे ट्रैक्टर को कानून की तरह जो रुकना चाहिए उसको रोकोगे तो हम ट्रैक्टर को सड़क पर ले आएंगे। तो बजाय ये मामला गलत दिशा में जाए, उनको सही ज्ञान दीजिए, प्रसारित कीजिए कि आप नया ट्रैक्टर लेते हैं, नया उपकरण लेते हैं तो सब्सिडी का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है,
और नई तकनीकी आपके खेत पर आती है, इस और कुछ करना चाहिए। मैंने अखबारों में ये देखा है। क्वेश्चन नंबर 125 श्री बाबूराम निषाद। Question number 125. Honorable Minister. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. फर्स्ट सप्लीमेंट्री बाबूराम निषाद जी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ट्रैक तैयार है या किसी परियोजना पर काम चल रहा है? अगर चल रहा है तो वो ट्रैक कौन कौन से हैं और ये ट्रैक कब तक पूरे हो जाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। दुनिया के जितने भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, करीब करीब सभी ने अपने जो बड़े शहर हैं उन बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन जैसी, या जिसको जेनेरिक शब्दावली में कहें तो हाई स्पीड रेल की व्यवस्था की है। चाहे चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, करीब करीब इन सब कंट्रीज़ ने ऐसी व्यवस्था की है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, अपने पर्सनल अनुभव से भी हम देखें, जैसे जैसे किसी भी वाहन की, किसी भी व्हीकल की स्पीड बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करना, उस व्हीकल का जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसका एरोडायनामिक्स जो होता है, उन सब का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लिया गया, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है और इसमें जापान के साथ सहयोग किया गया है। जापान बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी में पायनियर है। 1969 में उन्होंने ये काम चालू किया था, तो उनके सहयोग के साथ ये काम चालू हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने के तरीके में और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा भारत में इसका आत्मसात हुआ। टेक्नोलॉजी में कैसे अर्थक्वेक प्रूफ जो वायाडक्ट है, यानी ब्रिज, यानी एलिवेटेड ट्रैक जो होता है, उसको अर्थक्वेक प्रूफिंग कैसे की जाए। एक साथ 40 मीटर का लंबा गर्डर जो 1100 टन का गर्डर होता है, उसको एक तरीके से कैसे प्लेस किया जाए। कई जो नई बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं और वही जो मोल्ड होते हैं गर्डर को कास्ट करने वाले, उनकी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित होने लगी है। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट को हमें केवल एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह भी नहीं देखना चाहिए। हमें ये इसको समझना चाहिए कि जब भी बुलेट ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट आता है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4-5 शहरों की अर्थव्यवस्था को जोड़ के एक अर्थव्यवस्था बनाती है। मैं इसका उदाहरण जापान की अर्थव्यवस्था से अगर देता हूं, जहां की सबसे पहली बुलेट ट्रेन लगी थी। टोक्यो, नागोया, कोबे, ओसाका और क्योटो, ये 5 के 5 शहर की अर्थव्यवस्था एक हो जाती है। यानी 100-150 किलोमीटर की जर्नी 15-20 मिनट की, आधे घंटे की जर्नी हो जाती है। तो उससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति एक शहर में रह रहा है, दूसरे शहर में काम करके वापस शाम को अपने घर आ सकता है। बहुत उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। और माननीय सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट में बहुत तेजी से काम चल रहा है। करीब 320 किलोमीटर का काम, पिलर्स का काम कंप्लीट हुआ है, वायडक्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ है। एक अंडर सी टनल जो ठाणे क्रीक में करीब जमीन से करीब 50 मीटर गहरी समुद्र के नीचे से, उस टनल का काम भी चालू हुआ है। 8 के 8 नदियों के ऊपर ब्रिज का काम बहुत अच्छी एडवांस स्टेज में है। स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा एडवांस स्टेज में, और करीब करीब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है कि भारत में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है और कई नए इनोवेशंस इसमें हुए। धन्यवाद। माननीय बाबूराम निषाद जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन में कितनी सीढ़ियां होंगी एवं इनका अनुमानित किराया कितना कितना होगा? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बुलेट ट्रेन में अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं, डॉक्टर ई श्रीधरन साहब, जो कि रेलवे के सेक्टर में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो अथॉरिटी माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि मेट्रो के अंदर कोई क्लास का डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
और मैं तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल जी के कार्यालय में काम करता था। मुझे उस समय का ये तब भी अनुमान है, ध्यान है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन में भी केवल 2 श्रेणी रहेगी, एक नॉर्मल चेयर कार की और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की, केवल 2 श्रेणी रहेगी। वंदे भारत में भी इसीलिए केवल 2 श्रेणियां रखी गई थी कि एक्चुअली प्रेफरेंस तो यही है कि केवल एक श्रेणी रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आके बैठे। हम समाज की जिस तरह के समरस समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो हम लोगों का विचार है, उस विचार के अनुसार श्रेणियां उसमें नहीं आती है, अलग अलग श्रेणियां हम लोग उसमें नहीं देखते हैं। थैंक यू। माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। I have a very pointed question, sir. Whether it is true that the deadline for the completion of the first bullet train project has been extended several times from the initially stated deadline of 2022 to the current deadline of 2027? If yes, please state the number of times that the deadline for completion of the first bullet train has been extended and the reasons for missing the deadlines. Thank you, Nadimul. सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और हर देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसका डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है और उसकी डिज़ाइन भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन होती है। अगर मैं उदाहरण दूं, कई देश ऐसे हैं जिनको 20-20 वर्ष लगे हैं बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को करने में। उसके बावजूद भी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी और कोविड के 2 वर्षों के बावजूद भी इतने कम समय में 320 किलोमीटर बन पाना, ये भी अपने आप में माननीय सभापति जी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि और बहुत बड़ी रिकॉर्ड उपलब्धि है। थैंक यू। सप्लीमेंट्री फोर्थ, माननीय राजीव शुक्ल। सरकार का तीसरा टर्म है, लेकिन 2014 में घोषित बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलेगी भी शुरू नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ दिक्कतें हैं उसमें, और मैं भी जापान में बुलेट ट्रेन में गया हूँ और वो सिंगल ट्रैक उन्होंने बनाते हैं और उसके ऊपर से चलती, तो अलग से ट्रैक भी मेरे इस पर बिछानी पड़ती। बात आपकी सही है। मेरा अपना मानना है कि व्हाट आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स in delay of this project? Secondly, if Ahmedabad-Mumbai route is difficult, you need to build a tunnel beneath the ocean, then why don't you pick up another project also simultaneously where this can be made easily, where the surface is plain? Thank you. जी, इस प्रोजेक्ट में कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको डिज़ाइन करने के टाइम में सावधानियां बरतनी पड़ती है और उन सावधानियों को बरत के उसके डिज़ाइन को उस तरह से प्रॉपरली करके काम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। थैंक यू। डॉक्टर सरफराज अहमद। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तृत जानकारी बुलेट ट्रेन की हम लोग को दी है। मैं इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि दो हमारे इस देश के पिछड़े राज्य हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, क्या सरकार की ये प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में ही बुलेट ट्रेन चलाने जाएगी? अगर है तो फिर कब तक वो हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर सरफराज जी। माननीय सभापति महोदय, ये इस कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी आत्मसात करने पे, समझकर अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करने में और अपने पूरे देश में इसका जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो बनाने पे फोकस है अभी। और मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर भी करना चाहूँगा कि जो बड़ी वाली जो क्रेन्स होती हैं जिससे कि गर्डर उठा के वायडक्ट के ऊपर रखना होता है, इनिशियली क्रेन की टेक्नोलॉजी बाहर से आई और दो क्रेन के इंपोर्ट के बाद में, माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट नंबर मुझे पूरा ध्यान नहीं है, शुरू में क्रेन को लाने के बाद में आगे सारी की सारी क्रेन की डिज़ाइन भारत में बनी। वैसा ही जो मोल्ड होता है, उस मोल्ड के इनिशियली टेक्नोलॉजी बाहर से आई, लेकिन उसके बाद में मोल्ड की टेक्नोलॉजी भारत में ही बनने लगी और अच्छे अपने कोयम्बतूर में बहुत अच्छा जो फोर्जिंग और फाउंड्री वाली इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, उस इंडस्ट्री का अच्छा इसमें उपयोग हुआ। तो अभी सारा का सारा फोकस है कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भारत की जनसंख्या है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उसके हिसाब से आगे भविष्य में हमें बहुत सारे इस तरह के एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने ही पड़ेंगे। जब सरफेस पे कोई भी ट्रेन चलती है तो उसके सामने
बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कभी कैटल आता है, लोग भी गांव भी आसपास है तो उनकी भी तकलीफ होती है। तो अपनी जितनी जनसंख्या के समकक्ष देशों ने सब ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाए जाएं। तो ये अपना पहला अच्छा प्रयोग है और इसमें अच्छी सीखने को मिला है देश को। तो भविष्य में जो बहुल जनसंख्या बहुल क्षेत्र है उसमें एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स जो कि हाई स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, वैसा देश को निर्णय लेना होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 126 माननीय श्री बाबू भाई जेसान भाई। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा रेल पटरियों के रखरखाव और सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण सहित रेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? प्लीज। महोदय, रेल पटरियां और उनके रखरखाव, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाना, उसमें नए प्रोसेसेस लाना, मेंटेनेंस के नए तरीके लाना, इनके ऊपर बहुत ही फोकस्ड वे में काम किया गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन के इस महान सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। जो ट्रैक्स की मेंटेनेंस होती है माननीय सभापति महोदय, उसमें टोटल रेल रिन्यूअल, जो कि एक बहुत ही प्राइमरी काम होता है क्योंकि पटरी स्टील की बनी है और जो ट्रेन है वो जब चलती है उसके पटरी की लगातार कंटिन्यूसली उसका वेयर एंड टेयर होता है। उसमें पिछले 10 वर्षों में 43,000 किलोमीटर्स की रेल रिन्यूअल की गई है, जो कि अगर उससे पहले के 10 वर्षों में लें तो उससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। हाई क्वालिटी रेल्स यानी 60 किलो की जो रेल होती है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो माननीय अध्यक्ष जी अगर 4 से 14 वाला पीरियड लें तो उसमें करीब 57,000 किलोमीटर लगी थी और 14 से 24 वाला पीरियड लें तो इसमें 1,23,000 किलोमीटर लगी, यानी करीब 2 गुने से ज़्यादा। लॉन्गर रेल पैनल्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिश प्लेट्स लगेगी ट्रैक में उतनी ही उसकी सेफ्टी कम होती है, इसलिए दुनिया भर में जितना हो सकता है लंबे रेल पैनल लगाए जाते हैं। तो लंबे रेल पैनल अगर देखें तो 2004 से 14 में मात्र 9,917 किलोमीटर लगे थे और 14 से 24 में 68,000 किलोमीटर, यानी करीब करीब 7 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से हम किसी भी पैरामीटर पे लें, जैसे ट्रैक मशीन, जो ट्रैक्स की कंडीशन कैसी है वो देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड फ्लॉ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होती है। उसमें भी माननीय सभापति जी, एक पुरानी पद्धति चलती थी कि व्यक्ति अल्ट्रासाउंड मशीन को लेके चलता था, ट्रैक के ऊपर चलते चलते उसको टेस्ट करने की एक पद्धति थी। उसमें क्या होता था कि अगर मशीन ढंग से नहीं रखी हुई है, मान लो ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर अगर मशीन ढंग से नहीं रखी है तो उसका प्रॉपर डिटेक्शन होगा नहीं उसमें फ्लॉ का। इसीलिए जो दुनिया भर में आज प्रचलित है फेज्ड अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स, यानी 4-5 अलग अलग वेव्स उसमें डालते हैं ताकि मान लो जैसे ये ट्रैक है तो इस ट्रैक में अगर ऊपर भी देख पाए, साइड में भी देख पाए, इस साइड भी देख पाए, ये व्यवस्था करने के लिए नई मशीनें, नए इक्विपमेंट भी लाए गए हैं और लोगों की ट्रेनिंग भी, ट्रैक मेंटेनेंस के जो स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग में भी बहुत ध्यान दिया गया है। फिर माननीय सभापति महोदय, हम सब ने देखा होगा कि एक 1920-1930 से जो टेक्नोलॉजी है कि जो रेलवे के फास्टनर्स होते हैं, यानी स्लीपर और ट्रैक को जो बांधने वाला क्लिप होता है, उस क्लिप में सुबह से एक व्यक्ति जो हमारे की मैन होते हैं वो लेके हथौड़ा लेके जाते हैं और जहाँ जहाँ लूज हो जाता है उसको हथौड़े से फिट करते हैं। सभापति महोदय, इस देश का मैं क्या कहूँ, कई वर्षों तक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की गई थी। ये ऐसी चीज़ है जिसको 1940-1950 के दशकों में दुनिया में बदलाव लाया गया था, लेकिन वो बदलाव भारत में अब लाया जा रहा है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिसमें स्क्रू होता है जिससे कि वो पूरी तरह से टॉर्क करके फुल फोर्स के साथ स्लीपर और ट्रैक दोनों के दोनों अच्छे से फिट हो जाएं, इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो कई तरह के जो इनोवेशंस हैं ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए वो लाए गए और कार्य पद्धति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवर्तन लाया गया, जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं पूरे इस महान सदन के सामने रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से इतने बड़े
इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए प्रोसेसेस में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो आज करीब करीब हर एक जोन में, हर डिवीजन में, हर फ्राइडे को अगले 26 हफ्ते का मेंटेनेंस प्लान बनता है और उसको लगातार रिफाइन करते हैं जिससे कि मेंटेनेंस जितनी हो सके एडवांस हो जाए। इसीलिए माननीय सभापति जी, जो एरियर्स होते थे मेंटेनेंस के, अगर हम 10 साल पहले की परिस्थितियां देखें, बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ एरियर्स होते थे, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होके आज ऑन टाइम मेंटेनेंस वाली पद्धति भी आई। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दुर्घटनाओं से बचने के लिए अत्यंत तीव्र सिग्नल प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। सभापति महोदय, सिग्नलिंग रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और इसीलिए इस पे एकदम फोकस करके बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम किया गया है। सभापति महोदय, ट्रेन्स की स्पीड 1930-40 में बढ़ने लगी दुनिया भर में। तो जब ट्रेन की स्पीड्स बढ़ने लगी तो दुनिया भर में ये समस्या सामने आई कि लोको पायलट को जो बाहर फिजिकल सिग्नल होता है वो देखने में बहुत कम समय मिलता है। इसीलिए सारी दुनिया में कैब सिग्नलिंग और उसके बाद में कैब सिग्नलिंग के बाद में ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी आने लगी और करीब करीब सारी दुनिया में अगर हम देखें जितनी भी बड़ी रेलवेज हैं उसमें, चाहे यूरोप को देखें तो यूरोप में ETCS, जापान में देखें तो DATC, इस तरह से करके US में देखें तो PTC, रशिया में देखें तो ALSN, इस तरह से करके ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में 1980s और 1990s 80 के और 90 के दशक में करीब करीब सबने अपने अपने देशों में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज लगाई। अनफॉर्चुनेटली भारत में लंबे टाइम तक ATP टेक्नोलॉजी पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था और 2016 में पहली बार कवच के डेवलपमेंट का काम हुआ। 16 से 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ और इसका सर्टिफिकेशन भी सभापति महोदय बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इंडस्ट्री में SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 ऐसी 4 लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं। SIL यानी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, और एक SIL का सर्टिफिकेट मिलना माने 3-3, 4-4 वर्षों का प्रोसेस लगता है। 19 में वो सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ। 22 में सबसे पहले बड़ा टेंडर निकला इसका 3000 किलोमीटर का, और साथ ही साथ 3000 किलोमीटर के टेंडर के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो अनुभव आया, उस अनुभव से कवच 4.0 यानी फाइनल वर्जन, क्योंकि देश अपना बहुत ही विविधता भरा है, जो समस्याएं, जो सिचुएशंस हिली एरियाज में होती है वैसी डेजर्ट में नहीं होती, कोस्टल में जो होती है वो नॉर्मल प्लेन में नहीं होती। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कवच 4.0 इस 16 जुलाई को फाइनली RDSO ने अप्रूव किया है। तो अब इसका लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। कई मान्यवर सदस्यों ने बीच बीच में कई बार ये प्रश्न रखा है कि एंटी कोलिजन डिवाइसेस का क्या हुआ, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब रेलवे मिनिस्टर थी तब उन्होंने लगाए थे। मैं उसका भी स्पष्ट रूप से रखना चाहूँगा कि 2006 में एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने चालू हुए थे, लेकिन उसकी करीब करीब 1500 किलोमीटर पे लगे भी थे, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे फ्लॉज थे, उसकी डिज़ाइन में ध्यान नहीं रखा गया था, उसका कोई SIL सर्टिफिकेशन नहीं था, इसीलिए 2012 में उसको फेल करार करके उसको हटा भी दिया गया था। थैंक यू। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। I would request the Honourable Minister to be brief in his response and pointed question that I'm asking. Sir, there have been frequent cases of train derailments over the last year causing loss of lives. Currently, Kavach, which he has been speaking about, has only been deployed on 2%, that is 1465 kilometers of the country's railway network since 2020. Out of 15,200 diesel and electrical locos, only 139 are equipped with Kavach, which is less than 1%. On this, at this rate, sir, how does the government plan to achieve its goal of implementing Kavach? Mani Priyanka ji, question so at least allow me to complete the question, please, sir. Now, a statutory resolution. Mani Shri Pankaj Chaudhary to move a resolution regarding approval of notification number 15/2024, customs dated 12th March 2024.
माननीय सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूं। सीमा शुल्क ट्रैफिक टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 का के अनुसरण में यह सभा द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2024 सीमा शुल्क दिनांक 12 मार्च 2024 GSR 182 और दिनांक 12 मार्च 2024 को अनुमोदित करती है, जिसका उद्देश्य क्रमशः टैरिफ मद 9022-3000 के अंतर्गत आने वाले एक्सरे ट्यूब्स और टैरिफ मद 9022-9090 के अंतर्गत आने वाले फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिंटिलेटर सहित पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधित करना है। Resolution moved